Honorable Speaker, sir, I rise to move that an address be presented to the Honorable President in the following terms. That the members of the Lok Sabha assembled in this session are deeply grateful to the President for the address which he has been pleased to deliver to both houses of Parliament assembled together on June 20, 2019. माननीय सदस्य हिना गावित जी भाषण करें। माननीय Honorable Speaker, sir, it's a great honor for me to rise here to open the most important discussion at the beginning of the first session of the 17th Lok Sabha. I am grateful to Honorable Speaker for giving me this opportunity. I also take this opportunity to offer my heartfelt gratitude to our beloved and most revered Prime Minister Shri Narendra Modi ji for giving me this rarest opportunity to speak on this presidential address as becoming a first timer. My special thanks are also to the people who sent me to this August House. We have assembled here as members of the 17th Lok Sabha. This 17th Lok Sabha is unique in many respects. And sir, in the year 2022, we are going to celebrate the 75th year of New India. An India which would be clean and green, healthy and wealthy, where everybody would have access to a house and a toilet, where the farmers' income would have doubled, where the youth of India would have ample opportunities to express their abilities and to fulfill their dreams, where the women would have free access to, women would feel secure to pursue their career and interest and live a life with dignity and honor. It would be an India free from terrorism, communalism, casteism, corruption, nepotism, starvation and exploitation. Sir, I offer my heartfelt gratitude to all the members. Sir, this is the vision of our leader, Shri Narendra Modi ji, on which this election was fought and won. Speaker, sir, this August House has been shaping the destiny of our nation and contributing significantly to the rebuilding of the nation. I am deeply conscious of the fact that I am a part of this House, the sacred temple of the largest democracy of the world, which was aided by great luminaries like Pandit Nehru, Dr. Syama Prasad Mukherjee, Maulana Azad, Lal Bahadur Shastri, K.M. Munshi, Atal Bihari Vajpayee and many others. By inducting into the Union Council of Ministers an ordinary person like me, the Honorable Prime Minister has not only humbled me, but has actually shown to the world that this government truly represents the poor, the downtrodden, the marginalized sections of the society. Swami Vivekananda used to say, no amount of politics would be obtainable until the masses of India are once more well-fed, well-educated and well-cared for. I am conscious of my role as a member of this August House. I would like to believe that the great dome of this House reflects the strength, the power, the majesty, the vigor of our democracy. It reflects ambition to soar high and to mirror the hopes and aspirations of our people. All of us representing the people of our country here under this dome will collectively endeavor to translate the Vox Populi, voice of the people. I have been in public life for the last 35 years as a social worker. For me, politics was never an instrument for enjoyment. It was a noble means to serve the people, the poor, the afflicted, the oppressed and the downtrodden. As Swami Vivekananda and Sri Ramakrishna told, Sarv Jiva in Siva. Each soul is potentially divine, says Swami Vivekananda. The goal is to manifest this within by controlling nature external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy and be free. This is the whole of religion. Doctrines or dogmas or rituals or books or temples or forms are but secondary details. Sir, I have worked in the highly underdeveloped region of North Odisha in Nilgiri, where I grew up as a child hearing stories from my very infancy about Sardar Patel, by whose clarion call Nilgiri became the first state to be merged in the Union of India. And the war vessel was named IS Nilgiri. Sir, the Sardar united our nation, and I am confident that my Sardar, our Prime Minister, who has relentlessly worked day and night to serve 130 crore of our sisters and brothers to take development to the last man at the bottom of the pyramid, will help take India to new heights. Sir, I was born in a humble family with modest means. I had the opportunity to become two-term MLA in Odisha Legislative Assembly. During the course of my public life, I could have made fortunes. However, I choose to stay with my roots, with my people who are poor and deprived,
I choose to serve them with dedication and commitment because I had before me the role model of the great Swami Vivekananda, one Narendra in his boyhood and another Narendra, my Prime Minister, Sri Narendra Modi, who himself comes from a humble background and has seen, experienced and lived poverty. I am proud that a modest chaiwala, sir, why so much of intolerance? A modest chaiwala became the Prime Minister. आपको भी मौका मिलेगा. Modest chaiwala became the Prime Minister. Please, माननीय सदस्य. Their intolerance. Please, माननीय सदस्य. They should feel proud of that a common man become a Prime Minister. Please, माननीय सदस्य. Please. Please. Please, माननीय सदस्य. Please. Please, माननीय सदस्य. Please. I am proud that a modest chaiwala became the Prime Minister. Please, माननीय सदस्य. And an ordinary man like me, माननीय the opportunity to serve the nation as a member of this August House and as a minister. Speaker, sir, I take this opportunity to thank the people of Odisha and the people of India who have contributed to the fantastic electoral performance. My state is rich in mineral resources. People of my state are peace-loving and hardworking. माननीय सदस्य, please. Please, माननीय सदस्य. Please, माननीय सदस्य. Please, माननीय सदस्य. Sir, Please, माननीय. one of our great Please, माननीय सदस्य, please. are told culture and his industry. Now this has been translated into action by our Narendra Modi. Sir, we have never heard of skill development in the 10 years of UPA rule, in the 55 years of Congress rule. We have never dreamt of skill development. The necessity was not felt. Now Narendra Modi introduced skill development and our human resources have been great height. माननीय सदस्य. Sir, if you crush a piece of stone, it will be worth 300 rupees. If you carve an image, it will be 55,000 rupees. This is value addition. This is industry. Sir, Odisha is home to many finest literary minds, sculptors, dancers and sports persons. It was in Odisha that Gandhiji's foot soldier fought the imperial might of the British with death-defying non-violent valor. This is the land which gave birth to Netaji Subhash, to Veer Surendra Sai, to Bakshi Jagabandhu. Odisha had emerged as a subcontinental social religious center from century to century through faiths such as Buddhism, Jainism, Saivism, Shaktism and Vaishnavism. It was Adi Shankaracharya who chose Puri as the seat of one of the four dhamas under the benign gaze of the Lord of the universe, Sri Jagannath. Odisha was also Chaitanya Mahaprabhu's Leela Kshetra. The presence of several religions gave Odisha its liberal pluralistic character. The liberal world outlook of Odisha has been beautifully composed by Pandit Gopabandhu Das. Mo prana prema dhare bhasiba dhara jagata heu moro prema pasara. He further says, Misu moro deho edeso matire desabasi chali jantu pichire desaro swarajya pathe jete gado puru tohi padi moro mangsa hada. Speaker sir, this speech of our Honorable President, sir, is a unique speech. This is a historical document. It is full of conviction and commitment. It is full of confidence and cooperation. Sir, this is a historical document which proves our achievements and our future roadmaps, our vision. As I stand here, my mind goes back to those days of UPA misrule, which was synonymous with governance failures. Sir, policy paralysis were new normal of the time. Scams after scams. 2G, 3G, Adarsh Singh, Commonwealth Games. Sir, to name only a few, have passed my brother, to name only a few, had eaten into the very vitals of the nation. Surrendering the governance system hollow and dysfunctional. The then political leadership, who was often referred to as accidental prime minister, remained a mute spectator, looking at the verdict of his boss. Sir, in a desperate attempt, a new concept of presumptive loss was advocated by a learned minister of the time to dilute the magnitude of loss of public property. The first family of the Congress also closed its eyes to the unpleasant optics of ministers in the then government. माननीय सदस्य, आपको भी मौका मिलेगा. माननीय सदस्य, प्लीज कम डाउन. प्लीज माननीय सदस्य, आपको भी अपनी बात को कहने का मौका मिलेगा. माननीय सदस्य, और प्लीज माननीय सदस्य, सर मैं निवेदन करता हूँ, प्लीज माननीय सदस्य, सत्ता के द्वारा हम बेईमान को ईमानदार नहीं बना सकते. माननीय सदस्य, को देशभक्त नहीं बना सकते. भ्रष्टाचारी को प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज.
सदस्य प्लीज सर क्या था हमारा देश की अवस्था क्या था? नो सर नो नो महिला को शौचालय के लिए आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। नो प्रतिज्ञा करना पड़ता था। आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। माननीय सदस्य प्लीज प्लीज माननीय सदस्य प्लीज आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात कहिए उस समय। प्लीज माननीय सदस्य प्लीज प्लीज नो नो माननीय सदस्य कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। राष्ट्रपति अभिभाषण में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए माननीय सदस्य प्लीज माननीय सदस्य नो माननीय सदस्य आपको अपनी बात को कहने का मौका मिलेगा। आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। माननीय सदस्य आपके बाद आपको कहने का मौका मिलेगा। नो माननीय सदस्य नो प्लीज माय सीट पे प्लीज माननीय सदस्य People saw in Narendra Modi era of hope, era of light. माननीय सदस्य प्लीज BJP in प्लीज माननीय सदस्य achieved the distinction of being a प्लीज माननीय सदस्य प्लीज after more than 3 decades. प्लीज आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। माननीय सदस्य Speaker sir, we are grateful to the Congress party. We are grateful to you. I am becoming grateful to you. माननीय सदस्य आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। We are grateful to the Congress party for making us aware of the value of strong leadership. Was there any leadership in those days? माननीय सदस्य आपको अपनी बात को कहने का मौका मिलेगा। Narendra Modi, we are grateful to the Congress to make us aware that people Please, want माननीय one of सदस्य। their आप उसको बोलने आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर व्यवस्था का सवाल बाद में जवाब देंगे। माननीय सदस्य उनका पैतृक जमींदारी नहीं है। We are grateful to the Congress. आप भी बोल सकते हैं। माननीय सदस्य आप भी बोलना। माननीय सदस्य प्लीज We are grateful to the Congress to make us aware that BJP politics and appeasement politics has its expiry date. Only development agenda, माननीय agenda that endures. आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। Sir, all people can be cheated for some time. Some people can be cheated for all time. All people can never be cheated for all time. हाँ आपको मौका मिलेगा। In the run-up, आपको पूरा मौका मिलेगा अपनी बात को कहने का। the country was आपके माननीय सदस्य जो भी मिलेंगे उनको मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। प्लीज leveling the माननीय as anti-Dalit, anti-poor, anti-SC, anti-farmer, anti-women, anti-minority. Sir, favoring crony capitalists and pushing India into economic distress. Issues concerning unemployment, agrarian distress, terrorism and women's safety were spitefully raised to show the government in poor light. Fingers were raised at the government on baseless allegations of causing distress to people through demonetization, implementation of GST, or stifling freedom of speech, or promoting hatred and intolerance in the society, or diluting the autonomy of universities and institutions, and the Rafale issue. All this came out to a nut. An all-out effort was made to portray a negative image of a popular government in the eyes of the public, so that a popular government is discredited by the sinister campaign of a few vested interest politicians. But Narendra Modi remained firm, undisturbed, calm, and went ahead with his noble mission of raising India to its new heights. Sir, in our Shastras it says, Ninnantu niti nipuna yadi vastuvantu lakshmihi sama visudu gacchatu va yathestam addeva va maranamustu yugantareva nyayat patah pravichalanti padam nadiraha. Sir, truth came out victorious. Satyameva jayate nanandutram satyena pantha vitato devayanam. Truth is paramount, and the sun of truth can never be covered by the black cloud of untruth all the time. Sir, all the efforts of the opposition to deceive people through false propaganda came to a naught when the people of India exercised their democratic choice once again in favor of Sri Narendra Modi and his majestic leadership. Sir, the electoral pundits were proved wrong. Their electoral calculus collapsed, and traditional ways of looking at electoral politics from the prism of caste and community suffered irreversible changes. They have consciously voted in favor of BJP, which is committed to development and national security. People have voted for a party which does what it says and which says which it could do. There is no difference between the words and deeds. Our journey from 2014 to 2019 reaffirmed our commitment.
और प्रधानमंत्री टोल्ड एट द बिगिनिंग, मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, देश का प्रधान सेवक हूं। इसको उन्होंने पालन करके दिखाया। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भारत की जनता ने 2014 में एक मैंडेट दिया था, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये मैंडेट, ये सरकार देश की गरीब, महिला, युवा, पिछड़े, दलित, आदिवासियों के लिए समर्पित रहेगा। और हमने इसको उसकी एक लाइन की फिलॉसफी बनाई, सबका साथ सबका विकास। सर, बहुतों ने गरीबों के बारे में बहुत भाषण दिया, बहुतों ने बहुत योजना बनाई थी, सबने अच्छी भावना से बनाई होगी, यह मैं डिस्प्यूट नहीं करता हूं, परंतु नरेंद्र मोदी ने इसको क्रियान्वित किया। और मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि जनता का विश्वास को जिन्होंने तोड़ा था, वे आज सहन नहीं कर पाते हैं नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से। सर, इसमें तो गर्व करना चाहिए। एक प्रधानमंत्री, कभी देखा है इतिहास में बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा में कैसे परीक्षा दिया जाए? आज लाखों बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उनको समझाते हैं। एक प्रधानमंत्री महिलाओं के साथ वार्ता करते हैं। सर, कभी देखा है मन की बात में? सर, इसमें तो गर्व करना चाहिए। सर, ये उसी नीति पर आधारित है, वेदांत का ये सामान्य प्रिंसिपल, जिसको आधार बनाते हमें एक शाश्वत मृत्युंजयी जीवन धारा दिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। ये उसी शाश्वत जीवन धारा के ऊपर नरेंद्र मोदी का विचार आता है। सर, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसका प्रतिफलन सबका साथ सबका विकास में हुआ है। सर, ये ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर जिन तिष्ठति भगवत गीता के ये वाणी का ये राजनीति में रूपांतरित होता है। नरेंद्र मोदी को इसका क्रेडिट देना चाहिए। सर, मैंने देखा, मैंने सुना 1971 वार में वो श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रशंसा करते हुए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ शब्दों को बाकी नहीं रखा था। सर, अपोजिशन का भी ये रोल होता है, कुछ अच्छा चीजों को तो प्रशंसा करना चाहिए, उसको देवी दुर्गा बताया। सर, नरेंद्र मोदी का ये कर्तव्य को प्रशंसा करने में इतना हिचकिचाहट क्यों? सर, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत, उपनिषदों ने बताया है। सर, इसको तो हमको प्रशंसा करना चाहिए। उड़िया में कहते हैं जगन्नाथ दास भागवत में, सकल घटे नारायण बसंती अनादि कारण। सर, जो प्रधानमंत्री ने 2014 में किया था, और तब भी उन्होंने कहा था कि मैं 5 साल में हिसाब देने आऊंगा। सर, 5 साल नहीं, इस भारत की राजनीति का पहला घटना है, इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड। प्रधानमंत्री हर साल देश का भिन्न भिन्न भागों में जाकर के उनका अकाउंटेबिलिटी को प्रमाणित किया है। ऐसा कभी किया था कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने, बाकी कोई प्रधानमंत्री ने? सर, जनता का सेवक बताया और सेवक मालिक को हिसाब देगा, इसको पूर्णतः अक्षर से पालन किया है नरेंद्र मोदी। सर, 5 साल परफॉर्मेंस के ऊपर सर मैं बताता हूं। सर, ये पहली सरकार है जो स्वाधीनता के लहर में सरकार आया था, अलग बात है, लेकिन ये पहली सरकार है जो प्रो इनकम्बेंट सरकार है। 5 साल में कामों का हिसाब दिया और परफॉर्मेंस के आधार पर निर्वाचित हुआ, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर के निर्वाचित हुआ। वी आर ग्रेटफुल द पीपल फॉर रिपोजिंग कॉन्फिडेंस इन अस। पिछले 5 सालों में देश की जनता ने, देश के गरीबों ने एक नरेंद्र मोदी एक्सपेरिमेंट किया था। आज हमें जिम्मेदारी के साथ ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है। हमने कभी नारा नहीं लगाया था बीजेपी की ओर से या एनडीए की ओर से, देश की जनता ने नारा लगाया, अब की बार 300 पार, और ये सफल हुआ। फिर एक बार मोदी सरकार। सर, जो मिलावटी हुआ था, इस एक्सपेरिमेंट का क्या परिणाम हुआ है? सर, देश की जनता ने कोई मिलावट को स्वीकार नहीं किया, ये असल माल चाहा। देश की जनता ने उसको करके दिखाया। इतने धूप में, इतना विपरीत परिस्थितियों में लोगों ने आकर दिन भर लाइन में खड़ा रह करके वोट दिया और सारा दुष्प्रचार को खत्म कर दिया। इसलिए भारत के जागरूक मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं। सर, दिस वाज एन अमेजिंग इलेक्शन, दिस वाज वेरी यूनिक इलेक्शन, पर पीपल न्यू द रिजल्ट्स बिफोर द रिजल्ट्स केम आउट। सर, दिस इज द यूनिकनेस ऑफ दिस। सर, आप जानते हैं आज क्या हुआ रिजल्ट? बीजेपी अकेला 303, एनडीए को 353। इन दिनों में इतना बड़ा मैंडेट कोई एक सरकार के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोकसभा चुनाव में हमारी अप्रत्याशित जीत, विशेषकर उत्तर पूर्व बंगाल और उड़ीसा की जीत से नरेंद्र मोदी के ऊपर देश की जनता का विश्वास, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के कुशल रणनीति और कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से संभव हुआ। स्पीकर साहब, मैं नजर डालता हूं न केवल कश्मीर से विंध्य तक, सर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हिमालय से कन्याकुमारी तक, और अटक से कटक तक, सौराष्ट्र से ब्रह्मपुत्र तक। सर, मैं देखता हूं सर्वत्र ही
नरेंद्र मोदी का लहर चलता है और जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया। सर, पश्चिम से लेकर पूरब तक और पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक हम क्या देखते हैं? देखते हैं नरेंद्र मोदी का प्रभाव। मैं स्वयं पूर्व से आता हूं, नॉर्थ ईस्ट बीजेपी, सर नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, बंगाल, सर्वत्र जो गैर परंपरागत इलाका था, इससे मैं आता हूं। इस इलाके ने, जिसमें देश के गरीब लोग रहते हैं, जो देश का सबसे पिछड़ा इलाका है, इस इलाके ने भी नरेंद्र मोदी के साथ क्यों दिया? इसका नाम है एस्पिरेशन, एस्पिरेशन फॉर डेवलपमेंट, फॉर नेशनल ग्लोरी, जिसके लिए युवाओं ने वोट दिया। जनता अब इस मूड में है कि भारत को आगे बढ़ना है, भारत को आगे ले जाने के लिए अपना पार्टी लाइन क्रश करके भी, तोड़ करके भी वोट देने को आगे आ गया। इंडिया विल कंकर द वर्ल्ड नॉट विद द पावर ऑफ द फ्लेश बट विद द पावर ऑफ द स्पिरिट, स्वामी जी ने बताया। इसको नरेंद्र मोदी ही साकार करते हैं। चार प्रधानमंत्री कहते हैं 125 करोड़ देशवासी एक एक कदम आगे चलेंगे तो देश 125 करोड़ कदम आगे चल जाएगा। मुझे याद है, एक स्कूल में मैं ये परीक्षा पे चर्चा का व्यवस्था किया था। एक बालिका ने नरेंद्र मोदी जी को प्रश्न पूछा, आप इतना परिश्रम करते हैं, थक क्यों नहीं जाते हैं? उन्होंने तत्काल बताया, क्योंकि 125 करोड़ देशवासियों को मैं अपना परिवार मानता हूँ। सर, इतना बड़ा दिल, ये हृदय को आप प्रशंसा नहीं करेंगे, हृदय से आदर नहीं करेंगे? मैं समझता हूँ कि आप पार्लियामेंट में विरोध कर रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर प्रशंसा कर रहे होंगे। सर, सरकार चलाने का एक यूनिक तरीका उन्होंने निर्माण किया, विकसित किया। ये तरीका क्या है सर? जन भागीदारी। महात्मा गांधी बोल रहे थे, इस देश में करोड़ों लोगों को कैसे सुखी बनाना चाहिए? नॉट मास प्रोडक्शन बट प्रोडक्शन विद मासेस। करोड़ों आदमियों का सुखी बनाने के लिए हमें कुछ त्याग करना होगा। सर, नरेंद्र मोदी ने जन भागीदारी का, भगवत गीता में ये कोऑपरेशन का, गणतंत्र का एक सूत्र भगवान श्री कृष्ण ने बताया, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यते। सर, परस्पर श्रेय भावना, यही प्रधानमंत्री का विशेषत्व है, जन भागीदारी। उन्होंने जनता को विश्वास में लिया और हर योजना का हिस्सा बनाया। अब देखेंगे प्रधानमंत्री जितना योजना बनाया, इसका मूल उद्देश्य है जनता का भागीदारी। वी कैन नॉट डिक्टेट द फेट ऑफ द मासेस, वी आर नॉट द लॉर्ड गॉड, वी हैव टू इन्वॉल्व देम। सर, ये पहले कांग्रेसी शासन में या बाकी शासन में नहीं हुआ था। उन्होंने जनता का विश्वास लिया और हर योजना का हिस्सा बनाया, जनता को एहसास दिलाया कि सरकार उन पर विश्वास करती है। सर, पूर्व में सर्टिफिकेट को अटेस्ट करने के लिए बच्चों कितना हैरान होते थे। सर, कितना कष्ट उठाते, गजेटेड अफसर तक कुछ जाकर के लाइन लगाते हुए कितना परिश्रम करना पड़ता था, अपमानित होना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि वही मेरे देश के सामान्य लोगों पर भी विश्वास करो, अब सेल्फ सर्टिफिकेशन से प्रमाणित की जाएगी। सर, ऋग्वेद में बताया गया जो मानव समाज की उन्नति का मंत्र क्या है, देवता ने कैसे उन्नति किया, उसके सूत्र बताएगा। संगच्छध्वं संवदध्वं संगवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समझाना उपासि। समान मंत्र समिति समानी समान मनः साचित्तमेशम समान मंत्रम अभिमंत्र ये वो समानेन वो हविषा जो समानी वो आकृति समाना हृदयानि वो समानमस्तु वो मनो यथा वह सुशाद। बीट अपोजिशन, बीट गवर्नमेंट, बीट पब्लिक, बीट पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, हमको एक मन होकर के चलना चाहिए। हमारा आचार विचार उच्चार समान होना चाहिए, यही प्रोग्रेस का मूल मंत्र है और इसको कार्यान्वित किया है हमारे प्रधानमंत्री। सर, मैं आश्चर्य हो गया। मेरे गांव का जमुना मनी एक वनवासी महिला, जिन्होंने कुछ काम किया मलेरिया को इराडिकेट करने के लिए, एक आशा कर्मी, उनको ढूंढ निकाले हमारे प्रधानमंत्री ने। अलधरनाथ को ढूंढ निकाला। भारत के कई गांव में छिपे हुए ये अवलुप्त प्रतिभा को सामने ला करके प्रधानमंत्री इनको जिससे समादर किया है, सर ये अनप्रेसिडेंट है। इसके लिए क्या उनको वंदना नहीं करेंगे? आपके इलाके में भी तो होगा। सर, कौन जानता था प्रकाश राव को, जो चाय बेचकर गरीब बच्चों को पढ़ाता था, उनको नरेंद्र मोदी ने आविष्कार कर दिया। सर, हमें तो कृतज्ञ रहना चाहिए, कृतज्ञ राष्ट्र का भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहिए। हमने जो कहा वो किया। लोगों ने बहुत कहा एंटी मुस्लिम है, लोगों ने बहुत डराया कि फलाना ये हो जाएगा, लेकिन मैंडेट जिस ढंग से आया, ये पता चलता है समाज ने समरसता के लिए वोट दिया, एकात्मता के लिए वोट दिया, पार्टीजन पॉलिटिक्स के नहीं, कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए नहीं दिया। समाज का हर वर्ग ने प्रधानमंत्री को वोट दिया, आशीर्वाद भी दिया। सो दिस टाइम आवर स्लोगन बिकेम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। प्रधानमंत्री ने सबका विश्वास जीत लिया, इसलिए हमें गर्व है। सर, समाज के हर वर्ग ने प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया। आंकड़े बताते हैं क्या है सर, एन एनालिसिस ऑफ द रिजर्व सीट shows that the party has won 77 of 131 seats
Sir, in 2019 versus 67 in 2014. Sir, out of the total 84 SC seats, BJP won 40 in 2019. BJP won 40 in 2014. Out of the total 47 ST seats, BJP won 31 in 2019. BJP won 27 in 2014. 78 women members in 2019 versus 68 women members. So anti-Dalit, anti-SC, anti-women slogan went nowhere. पूर्व सर आज चुनाव का परिणाम आश्चर्यजनक है। सर एक प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री हार गए, मैं नाम नहीं लेता हूं, 12 मुख्यमंत्री हार गए। सर क्या, किसका परिणाम? बोल रहे थे नरेंद्र मोदी का क्रेज नहीं, कुछ नहीं। क्रेज नरेंद्र मोदी का है, क्योंकि वो भारत माता की साक्षात महान सेवक के रूप में प्रतिभात हुए, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। सर इतना विरोध क्यों करते हैं? सर ये सामंतियों को हराया, लोगों ने सामंतियों को हराया। क्यों? चाय बेचने वालों का बेटा दोबारा प्रधानमंत्री हो गया, बर्तन मांजने वालों का बेटा दोबारा प्रधानमंत्री हो गया, इसलिए इतना इंटॉलरेंस, इसलिए इतना असहिष्णुता। सर क्या आप नहीं चाहते हैं कि गरीबों का प्रतिनिधि कभी प्रधानमंत्री बने? सिर्फ जमींदारों का, राजाओं का, शाहजहादों का प्रतिनिधि बनेंगे? लोग आज डायनेस्टिक एंटरटेनमेंट का पसंद नहीं करते, अब भी समझ नहीं पाते हो। भाई साहब मैं बोलना चाहता हूं, अब तो समझो। सर इंटॉलरेंस पे भाषण देने वाले को भारत की जनता ने तो कड़ा उत्तर दे दिया। ये लड़ाई भारत की जनता ने लड़ी, प्रजातंत्र के द्वारा संवैधानिक प्रक्रिया से शांतिपूर्वक सच्चाई की विजय हुई, इसको तो मान लेना चाहिए। क्यों नहीं मानते हो? मैं सर भारत में जनता का अभिनंदन करता हूं और कांग्रेस समेत सारा विरोधियों को भी मैं अभिनंदन करता हूं, विशेषकर कांग्रेस के सारा मुख्य लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं। क्यों करता हूं? सर आपने हमारा बहुत सारा उपकार किया है। सर भगवान की इस ड्रामा में अगर हीरो होगा तो विलेन भी चाहिए, विलेन नहीं होगा तो हीरो का महिमा कैसे प्रकट होगा? सर भगवान श्री राम ने जब जंगल को गया, वनवास के उपरांत वो वापिस आया और माँ कैकेयी के पास गया, प्रणाम किया। माँ कैकेयी ने पश्चाताप पूर्वक बताया, अरे राम तू मुझे माँ कहकर पुकारता है? क्यों माँ? मैं तो कौशल्या माता के पास बाद में जाऊंगा, पहले तो आपको आया। कल माँ डाक 14 साल तक मैंने सुना नहीं। कल क्यों? भरत माँ नहीं देखती? नहीं भरत माँ पुकारती नहीं। पूछे भरत क्यों? अरे भरत तो मुझे राक्षसी, वागुनी, नागुनी बोलता है। कहले भरत ये क्या है? माता जी को अपमान। कहले देखो भाई, नागुनी, वागुनी, राक्षसी वो बाकी लोगों को खा जाते हैं, लेकिन अपना बेटा को नहीं खाते हैं। तो पति को भी खा गया, बेटा को भी। तो ऐसा बकवास मत करो, माफी मांगो। भरत ने माँ का चरण पकड़ लिया और कैकेयी माता आलिंगन कर लिया, आनंदाश्रु आ गए। देखो भरत 14 साल तुमने माता को प्रताड़ित किया, लेकिन मातृत्व की कैसा वात्सल्य निर्जरणी भती है, देखो तुमको गदगद होकर के आलिंगन कर लिया, माफी मांगो। फिर राम ने पुकारा, पूछा माँ मेरे को क्यों माता बोलने का अधिकार नहीं? आ बोलते नहीं तुम्हारा तो अधिकार है राम, किंतु कैकेयी का नहीं है। क्यों? बोले मैंने तुमको कितना कष्ट दिया? उन्होंने बोला नहीं माता, तुम तो ईश्वर प्रेरित हो, तुमने अगर मेरे को प्रताड़ित नहीं करते, वन में नहीं भेजते, तो राम को कौन जान सकता था? राम तो अयोध्या की छोटा सा राज्य में राजा होकर मर जाता, लेकिन आज दिगंत विस्तारी, हिमालय से कुमारिका तक, अटक से कटक तक, सौराष्ट्र से गंगा सागर तक, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक राम का जो महिमा मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में फैला है, ये माँ तुम्हारी कृपा से हुई। इसलिए आपके कारण हमारा बहुत उपकार है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास पहले संत और असंत दुजन को, दुष्ट और साधु को वंदना करते। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद भय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। वो कहते हैं मैं संत और असंत, साधु और शैतान दोनों को वंदना करता हूँ, क्योंकि दोनों में एक साम्य है। क्या साम्य है? दोनों ही दुखप्रद है। सज्जन का विच्छेद दुखप्रद है और दुर्जन का मिलन ही दुखप्रद है, दोनों में समान है। सर अब तो मैं निवेदन करता हूं कि जनादेश को विनम्रता पूर्वक मानने की सभ्य आचरण सीखना चाहिए। धन्यवाद देता हूं संविधान निर्माताओं को, चाहे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, राजेंद्र प्रसाद हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, ये नेहरू का नाम भी लेता हूं, नहीं प्रॉब्लम। सर लिया वे तो थे, हम भी हैं। आज कई लोग उनकी अवहेलना करके इंस्टीट्यूशन को तोड़ने का काम करते हैं। मुझे नेहरू से कोई अनटचेबिलिटी नहीं है। सर इन मोर देन 7 decades of India's independence, it was the Congress party which was in power for 55 years. Sir, still they blame us.
5 वर्ष में अस्थिर हो गए। अपेक्षा करना चाहिए व्हाट इज इट्स ट्रैक रिकॉर्ड। सर इमरजेंसी में क्या क्या किया था इसको तो याद करना चाहिए। सर किन किन को जेल में पुराया था, किन किन को अत्याचार किया था, कैसे भारत की गणतंत्र का तोड़ मरोड़ किया था, संविधान का अपमान किया था, डेमोक्रेसी का हत्या किया था, सत्य का कंट्रोल किया था, ये भूल गए हैं आप लोग। व्हाट इज इट्स ट्रैक रिकॉर्ड। इमरजेंसी में किसने सिक्खा दंगा करवाया था, सिखों का हत्या किसने करवाया था। सर रिजर्व बैंक को, गवर्नर को किसने हटाया था। सर इलेक्शन कमीशन पर किसने सवाल उठाया था। सर ईवीएम मशीन को कौन दोषी ठहराया था। 3 प्रदेश में ईवीएम मशीन के द्वारा कुर्सी पर आने के बाद जब हारने के मौका आ जाती है तब ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। ये क्या न्याय है सर। इस ईवीएम के प्रति तो कृतज्ञता प्रकट करो, किसने तुमको 3 प्रदेशों में कुर्सी पर बिठाया। सर इस मैंडेट को किसी का अधिकार नहीं है छीनने का, हड़पने का। जनता ने मैंडेट दिया और डिबेट्स एंड डिस्कशन करने का अधिकार दिया, लेकिन तोड़ मरोड़ करने का नहीं है। सर जनता का इतना अपमान करने का अधिकार किसको है क्या। देखो इस देश में संतों का, बाबा रामदेव का, भारतीय परंपरा का, कृष्टि का अपमान करने का फल तो पहुंचता है। सर अपोजिशन लीडर भी नहीं बन पाए, 15-20 साल बैठ करके अपोजिशन भी नहीं बन। अगर मैं निवेदन करता हूं सर थोड़ा सा समझो, इंट्रोस्पेक्ट करो। सर हमारे स्मृति दीदी ने क्या किया, अब केरल में राहत मिला, भगाई केरल में राहत मिली। सर अब तो सोचो, नम्रता दिखाओ, सर आत्मशोधन करो, पश्चाताप करो, मोदी से माफी मांग लेना चाहिए। सर हो सकता है जनता का रोष आपको इतना दूर तक भेज दिया, अगर हो सकता है सर जनता अगले बार आपको शांत होकर के विरोधी दल का मान्यता दे सकती है। माननीय सदस्य सर प्लीज, सर जनता आपको प्लीज माननीय सदस्य प्लीज दोबारा प्लीज आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। शांत हो जाइए। रिपोर्ट में जाएगा, केवल माननीय सदस्य का रिपोर्ट में जाएगा। माननीय सदस्य प्लीज आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, सदन में आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। प्लीज माननीय सदस्य, 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 प्लीज माननीय सदस्य। सर आज हमारे सरकार की कार्यशैली देखिए, ये गरीबों के लिए समर्पित है। सर एलपीजी गैस यूपीए रूल में सपना था गरीबों के लिए। आज देश में 98% टॉयलेट बनी है। सर इलेक्ट्रिसिटी 100% विलेज को गया है, 2.5 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली का कनेक्शन हो गया है। सर जनधन योजना में 1-1.5 साल में 34 करोड़ का अकाउंट्स ओपन हो गया है। सर प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी ने तो बोलते थे कि 15% पैसा जनता के पास पहुंचता, 85% चला जाता है। सर क्यों? इसलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम हुआ, नरेंद्र मोदी ने किया। वो तो बोलते थे इसको बंद करने का श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। सर आज लोगों को पेंशन योजना, सर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सर इसके द्वारा करोड़ों सैकड़ों योजना के द्वारा आज गरीब लोग डायरेक्ट बेनिफिट पाते हैं। क्या इसलिए आपको आनंद नहीं आता है? बिचौलियों की छुट्टी करो। सर मुद्रा योजना 14.50 करोड़ लोन सैंक्शन हुआ है, 50 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत द्वारा मुफ्त इलाज बनता है। सर मुझे दुख है, ये जो 50 करोड़ गरीब लोग उनको पैसा मिलेगा, ये उड़ीसा का नहीं मिलेगा, बंगाल का नहीं मिलेगा। सर मैं पूछना चाहता हूं क्यों उनको नहीं मिलता है? अमार सोनार बांग्लार भाई बोनेरा कि ये अधिकार पावे ना? क्यानो तो क्रोध, क्यानो को आतो आक्रोश। राष्ट्रीय पैसा नरेंद्र मोदी देते हैं, लेकिन हमार सोनार बांग्लार भाई बोनेरा इसको पावे। सर इस विषय में विचार करना चाहिए। स्वामी विवेकानंदर भूमि, क्षुदिराम बोसेर भूमि, स्टार श्री अरविंदर भूमि, रवि ठाकुरेर भूमिते आज এই सामान्य जनेर सुविधा मिलते पारছে না, তাই আপনার মনে কি দুঃখ হচ্ছে না?
सर कुपोषणের লাভ স্যার নিউট্রিশন প্রোগ্রাম মিলছে না স্যার আপনাকে দুঃখ হচ্ছে না सर 1.5 करोड़ घरों का निर्माण ऐसा कहीं नहीं हुआ है सर 2022 तक सब लोगों को घर, सब लोगों को बिजली, सब लोगों को जमीन, इतना बड़ा सपना को साकार करने के लिए क्या हम हाथ नहीं मिलाएंगे? किसानों की सालाना 6,000 रुपयों का मानधन, स्ट्रिक्ट डिसीजन ऑफ फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस at 1.5% of the 1.5 times of the cost of production for 22 crops. Such is not a great achievement. 4 दशक से लंबित डिमांड को पूर्ण किया 10%. साथ गरीब लोग, ईमानदारी से गरीब लोगों को रिजर्व कैटेगरी का न हो कुछ लाभ नहीं मिलता था, ये बहुत डिमांड था. लेकिन नरेंद्र मोदी ने हिम्मत दिखाया और विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन 10% उन्होंने एनहांस किया. सर इसके लिए उनको अभिनंदन नहीं करना चाहिए क्या? वीकर सेक्शन के लिए उन्होंने किया. इन 2014 only 59 village panchayats in the country had digital connectivity. Today 1,16,000 village panchayats are connected with optical fiber and about 40,000 village panchayats have been provided with Wi-Fi hotspots. सर रेल का ट्रेस रिन्यूअल ट्रक रिन्यूअल हुआ 1.5 गुना बढ़ा. सोलर पावर 2.6 गीगावाट टू 25 गीगावाट हुआ. एयरपोर्ट 65 to 101 हुआ. सर इसके लिए तो नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन करना चाहिए. सर यहाँ तक कि माँ गंगा की स्वच्छता सालों साल सैकड़ों साल तक गंगा के प्रति जो अवहेलना हुआ, ये भारत की जीवन रेखा है. सर ये भारत की जीवन रेखा गंगा माता, उनको अपमानित किया जाता है और ये नष्ट हो जाता था. सर इसको बचाया कौन ने? सर भगीरथ की तपस्या की धारा से स्वर्ग से निकली गंगा हिमाद्री हो करके आज वह पार्श्वस्थ भूमि को शीतलता, स्निग्धता, पवित्रता प्रदान करते हुए सागर तक बहती है. कहीं कल कल छल छल निनाद में, कहीं भीमकांत गर्जन में सारा राष्ट्र को समृद्ध करती आए, लेकिन उसको हमने नष्ट कर दिया. सर भगीरथ ने तो गंगा को लाया था, गंगा को पुनर्जीवन प्रदान किया नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट में. सर देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले ममोति रास्तंग तब पद कमले. सर ये श्लोक भगवत पाद आद्य शंकराचार्य ने बोला था. लेकिन ये गंगा सर गंगा को पुनरुद्धार करने का श्रेय नरेंद्र मोदी को जाएगा. आप क्या इसमें आनंदित नहीं होते? सर jealousy is a double-edged blood. If it cannot hurt your enemy, it will come back and hurt yourself. हमने ऐसे कार्य किए कि आज हम 50% वोट की पार्टी बन गए. कई लोग महागठबंधन की बात करते हैं, महा भी नहीं गठबंधन भी नहीं. तेल और पानी का मिलावट जैसा बेकार हो जाता है, ऐसा ही हुआ. तेल तेल नहीं रहता, पानी पानी नहीं रहता. किस नीति पे गठबंधन? सिर्फ मोदी के विरोध से. कोई सैद्धांतिक गठबंधन नहीं है. जो कल खड़गा लेकर के परस्पर के खिलाफ बोलते थे, लड़ाई करते थे, आज ये बैठ गए गठबंधन में, ये नहीं चालू हुआ. सर क्योंकि मिलावटी चीज चालू नहीं होता. जो शुद्ध है, जो सुभाषित है, जो अच्छा स्वाद के है, वही बिकती है और नरेंद्र मोदी ने ये प्रस्तुत कर दिया है देश के लोग. सर ये देश महाराणा प्रताप की देश है, पृथ्वीराज चौहान की, छत्रपति शिवाजी की और राणा प्रताप की, भगत सिंह की, खुदीराम बोस की, दिनेश गुप्ता की, महात्मा गांधी की, भगवान बुद्ध की देश है. सर ये देश को तोड़ मरोड़ करने का किसका अधिकार नहीं है. सर लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार क्या किया, देश में जब खाद्य संकट था, पाकिस्तान के साथ युद्ध लगने वाला था, अमेरिका ने धमकी दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने पुरुषार्थ प्रकट करे उसी जमाने में विपरीत परिस्थिति में देशवासी को निवेदन किया कि एक वक्त अपने भूखा रहो, उपवास करो. सारा देश से लाखों लोग उपवास करते आए हैं. सर नरेंद्र मोदी जी ने भी देशवासियों को पुकारा कि गरीबों को गैस देने के लिए, गरीबों को स्मोक चूल्हा से मुक्त करने के लिए, माँ बहनों को उद्धार करने के लिए आओ हमारा गैस सब्सिडी छोड़ दे. और देशों में करोड़ों लोग इसका रिस्पॉन्स किया. सर ये क्यों हुआ? इतना हिम्मत कभी किसी ने जुटाया था? क्यों हुआ? अपील का परिणाम क्यों हुआ? क्योंकि ये साक्षात मूर्तिमान त्याग का आदर्श है. सर इसलिए ये हुआ है. भाषण से नहीं होता है, व्यक्तित्व से प्रभाव आता है. सर an average politician looks in the term of an election, a statesman looks in the term of a generation, and a nation builder looks in the term of a millennium, and Narendra Modi belongs to this rarest category of becoming a nation builder. Sir, नरेंद्र मोदी का आह्वान का प्रत्युत्तर जनता ने दिया है. Sir, our development story can be successful if the unity
and integrity of our nation remains uncompromised, we know that violence and terror continue to threaten and destabilize our nation. And our turbulent neighbor has been fomenting such forces. Sir, very sorry. Some of our leaders, some of our intelligentsia spoke in the form of this, in the support of these terrorists. We must deal with these elements firmly. We are proud that our government has displayed a steely resolve to take terrorism head-on and to eliminate it right from its sources. Sir, the befitting reply to the Pulwama attack through the airstrike was a reflection of the political will, not to be cowed down by terrorist acts, but to go for the jugular and tackle it at its genesis. The swiftness in which we could secure the release of the Indian wing commander captured by Pakistan was indicative of the growing strength of India under Prime Minister. Have you ever dreamt of such an incident in your rule? Sir, अभिनंदन की बात तो बताता हूँ। सर, अभिनंदन की बात बताता हूँ। जब अभिनंदन पाकिस्तान मिट्टी में मार खा रहा था, भारत माता की जय कह रहा था, आप लोग क्या सोचते थे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री को बताया तुरंत छोड़ करके जाओ। उन्होंने बोला अब आलोचना करेंगे। प्रधानमंत्री ने कोई चर्चा नहीं, तुरंत छोड़ो नहीं तो पाकिस्तान का चिन्ह को विश्व मानचित्र से हटा दिया जाएगा। तुरंत उनका आकर के छोड़ दिया। सर, ये भारत का विजय नहीं है, ये प्रधानमंत्री का क्रेडिट नहीं है। सर, तीन बार म्यांमार में और पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके प्रधानमंत्री ने जो दम दिखाया, जो पुरुषार्थ दिखाया, ये प्रत्येक भारतीय को गर्वित करता है, सिर्फ आप लोगों को छोड़ करके। सर, क्यों दुखी होते हैं? सर, the valor, the strength, the might, the majesty of Mother India has increased million times under the able leadership of प्रधानमंत्री। क्यों बाबा, आपको क्या दुख है? भारत का विजय में आप दुखी होते हैं क्या? प्रमाण मांगते हैं कुछ लोग। मैं पूछता हूं, पिताजी को पिता बोलने के लिए क्या माताजी से डीएनए टेस्ट रिपोर्ट हम लेते हैं? सर, मैं पूछना चाहता हूं, हमारे जवानों की पुरुषार्थ पर, पराक्रम पर, वीरता पर, बलिदान पर हम संकट प्रकट करते हैं, शंका प्रकाश करते हैं। ये कैसा देश प्रेम है? आश्चर्य हो जाता हूं, संपूर्ण विश्व आश्चर्य चाहता है कि भारत का ऐसा दिग्गज नेता अपना जवानों के पुरुषार्थ पर सवाल उठाते हैं। सर, रातों रात, दिन दिन अनिद्रा रह करके सीमांत में खरा वर्षा शीत बर्फ में अपना जीवन का न्यौछावर करने वाले इन वीर जवानों को तो कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए। सर, एक जवान में जानता हूं, घर को आया था, शादी हो गया, 2 महीना छुट्टी में आया था, लेकिन तत्काल उनको नोटिस आया, कल शादी हुआ, पति पत्नी का मिलन नहीं हुआ, तुरंत नोटिस आया, चलो सीमांत पर। जवान के सामने पत्नी आकर बोली, प्रिय आप कैसे जाएंगे? बोला, प्रिय आप मेरा प्रिय हो, लेकिन भारत माता मेरा प्रियतमा है, मैं जाता हूं, विजय प्राप्त करके तुरंत वापिस आऊंगा। वापिस नहीं आया सर, वहां पर निधन हो गया, देश मातृ का चरण में उनका जीवन समर्पित हो गया, नहीं आ पाया। छोटा सा बहन हमारा विधवा हो गया। सर, इन लोगों के लिए हमारा कोई दायित्व नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है? इस पर भी सवाल उठाएंगे? क्या ये देश को गर्वित करता है? सर, नहीं, गुस्से में नहीं। सर, ये टुकड़ों टुकड़ों ज्ञान का धर्म है क्या? भारत को टुकड़ा टुकड़ा करने तक हमारा जंग जारी रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफजल गुरु जिंदाबाद। हमें शर्मिंदा है कि अफजल तेरा कातिल जिंदा है। ये कहने वाला लोगों का कि इस देश में रहने का अधिकार है? उनको सपोर्ट करने वाला लोग सर, कौन इनको सपोर्ट करता है? इंट्रोस्पेक्ट करो सर। जिनको हमारा प्रिय भारत की पावन भूमि में प्यार नहीं है, जिनको भारत की आजादी और अखंडता स्वीकार नहीं है, जिनको भारत की वंदे मातरम स्वीकार नहीं है, क्या उनको भारत में रहने का अधिकार है? सर, देश का करदाताओं की अर्थ का श्राद्ध करते हुए विदेश में रहने वाले एक नेता हमारे एक बार कहते थे कि हमारा न कोई राष्ट्र है, हमारा न कोई संस्कृति है, हमारे न कोई देश है, हमारा उपमहादेश है, हमारा राष्ट्र संघ है, जैसे कि अमेरिका में राष्ट्र संघ है, ऐसा वो कल्पना करते थे, और हमारा मिली जुली संस्कृति है। भारत की परंपरा के बारे में उनको कोई नहीं है ज्ञान। ये प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन भारत की परंपरा, उनको भी कई इंटेलिजेंस सपोर्ट किया है, कई राजनेता सपोर्ट किया है। मैं साफ साफ कहता हूं, ये हमारा एक देश है। हिमालयात् समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तंगदेव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे सैव दक्षिणम वर्षं तद भारतं नाम भारती यत्र संतति। इस भूमि में जन्म होने के लिए सर देवताओं ने भी तपस्या किया है। ये पावन भूमि जिसके बारे में वेद कहते हैं, माता भूमि ही पुत्रहम पृथिव्या। भगवान श्री रामचंद्र लंका का स्वर्णिम सिंहासन को छोड़ करके लक्ष्मण और विभीषण को बताया
मुझे ये स्वर्ण सिंहासन नहीं चाहिए। उन्होंने निवेदन किया था यहाँ शासन करो, लंका को छोड़ करके बताया अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयते। सर भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य ने इस भूमि का बंधन करते हुए बोले प्रातः स्मरामि शुभदांग वरदांग वरेण्यम सिंदूरमि धौत चरणम सुधियाम शरण्यम। स्वामी विवेकानंद बोले थे आगामी 50 साल तक छोड़ दो बाकी सब देवताओं को, भारत माता हमारा जीता जागता राष्ट्र देवता है। भारत माता पशु बलि नहीं चाहती है, नर बलि चाहती है, शास्त्र युवक बलि दे दो। और उनके आह्वान पर लाखों नवयुवक युवाएं आकर के फांसी की फंदा को चुमा, वंदे मातरम के पंचाक्षरी मंत्रोच्चार के भारत गगन को प्रकंपित करते हुए फांसी का फंदा को चुंबन किया, अथवा ब्रिटिश बाहिनी के साथ लड़ करके अपने को खंडित कर दिया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम, दिनेश गुप्ता, विनय बोस, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, प्रीति लता देवी, स्वर्ण लता देवी, अशफाक उल्ला खां, बागा जतीन सारे समर्पित कर दिए। मुझे दया आती है आपका ये कमेंट पर, मुझे दया आती है। मान्य सदस्य में बहुत है, आपको मालूम है, इतिहास पढ़ो, तब बीजेपी अस्तित्व में नहीं है। मान्य सदस्य असहिष्णु हो जाते हैं, केवल मान्य सदस्य के अलावा कोई रिपोर्ट मिल जाएगा। मान्य सदस्य आपका असहिष्णुता वास्तविक दयाजनक है, लज्जाजनक है। सर मुझे दया आती है, ये क्या बोलते हैं नहीं जानते, देश की क्रांतिकारियों का महिमा बखान सुनते भी असहिष्णु हो जाते हैं। सर तब तो क्रांतिकारी थे, लेकिन एक बंगाल की भूमि में संतरासवादी निकले जो गणतंत्र को हत्या करने वाले। सर मैं कहना चाहता हूँ, सर स्वामी राम मान्य सदस्य स्वामी राम तीर्थ बोले मैं हूँ भारत माता, मान्य सदस्य सोता हूँ माता सो जाती है, मान्य सदस्य चलता हूँ माता से, मैं जागृत होने से माता जागृता होता है। और हिमालय मेरा मुकुट है, कन्याकुमारी मेरा चरण द्वय, सौराष्ट्र और गंगा सागर मेरा प्रसारित भुज द्वय। सर श्री अरविंद बोले बेटे बेटे मत बोले। मान्य भारत माता न केवल वृत्तिका का विस्तार है, भारत माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माहेश्वरी स्वरूपिणी। मान्य सदस्य प्लीज भारत माता उनका चरण बंदवान करो, आपको अपनी बात करने का मौका मिला नहीं, बल्कि हृदय की सोच से भारत माता का मान्य भेजिए, प्लीज वंदे मातरम भेजिए, प्लीज मान्य भेजिए, जाते हैं, प्लीज मान्य भेजिए, धारणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम मातरम वंदे मातरम। सर और रवि ठाकुर बोलते हैं यही भारतेर महामानवेर सागर तीरे। सर यही भारत माता का वंदना जब करोड़ों देशवासी बोलते हैं, भारत माता की जो वंदे मातरम, भारत माता के हृदय कैसा गदगद हो उठता है, इसका कल्पना करने चाहिए, करना चाहिए। सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि कितना बदली है। कांग्रेस भाइयों को विशेषकर मैं कहना चाहता हूं, आजकल कुछ लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना फ्लाइट में खर्च किया विदेश जाने से। सर मैं सबको बोलना चाहता हूं कि मान्य सदस्य प्लीज, मान्य सदस्य प्लीज, क्या साइकिल से जाते थे? मान्य सदस्य प्लीज, आपको भी मौका मिलेगा। मान्य सदस्य इसलिए सर इक्के रूल में हमको मान्य सदस्य देता था, मान्य सबकी देता था बांग्लादेश, मान्य सदस्य म्यांमार, श्रीलंका, मान्य सदस्य चाइना। आज स्थिति कैसा बदल गया, आज पूरा भारत मान्य सदस्य संपूर्ण विश्व में समर्थन करता है। और एक घर क्या हो गए जो वो असहाय हो गए। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी शांति की कथावार्ता करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी पराक्रम से इसको साबित कर दिया और भारत माता का पराक्रम जागा। सर मैं जानता हूँ, मैं बंगाल के चुनाव के प्रचार में गया था, एक संतोष से मिला, उन्होंने मुझे बताया कि देखो भाई तुम्हारा नाम क्या है, मैंने बोला प्रताप षडंगी। तो मुझे आलिंगन किया और बोला 20 साल पहले मैं तुम्हारे साथ भाषण दिया था 3 सभा में। बोला कि देखो भाई हमने रात को 2 घंटा मठों का सारा संत बैठ करके जाप करते, भारत माता को रक्षा करो, नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाओ। देश का कैसा विश्वास है सर, समझो। सर मैं कहना चाहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा कैसा सम्मान हुआ, आपको क्या गर्व नहीं होता है? सर मैं कल पार्लियामेंट से एक रिकॉर्ड निकाला, सर प्रधानमंत्री ने कल में लिख करके दिया, इतना अवार्ड मिला उनको। सर देखिए कभी कल्पना कहीं कर सकते थे आप, इसमें भारत का गौरव बढ़ा नहीं। सर पीएम सऊदी अरब से हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किंग अब्दुल्ला जी,
हमारा पीएम को मिला नहीं, भारत माता को मिला। पीएम उनका घर नहीं जाएंगे, भारत माता का क्रेडिट बढ़ाए। सर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम बैठे बैठे नहीं सर प्रधानमंत्री जी को मिला। सर यूएई ऑनर्स पीएम नरेंद्र मोदी विथ जायद मेडल, सर प्रधानमंत्री को मिला। सर हमारा देश को मिला है भारत माता के सम्मान ही, सर इसलिए तो गर्व करो। फर्स्ट एवर फिलिप कोल्टर प्रेसिडेंशियल अवार्ड प्रेजेंटेड टू पीएम। सर प्राइम मिनिस्टर मोदी conferred on Seoul Peace Prize. सर मान्य सदस्य प्लीज, मान्य सदस्य आपको मौका मिलेगा। मान्य सदस्य सर मान्य सदस्य अवार्ड प्रधानमंत्री जी को मिला और भारत माता को सम्मानित किया सारा विश्व ने। सर प्राइम मिनिस्टर कन्फर्ड विथ ग्रैंड कोलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। सर पीएम प्रेजेंटेड विथ अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड, अफगानिस्तान हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। सर a list of major awards conferred upon our Prime Minister, 9 awards and an award from the UNO. Sir, is it not a pride for India? As an Indian, irrespective of your party affiliation, are you not feeling proud of? गर्व नहीं आता है, गर्व नहीं महसूस करते हो? सर प्रधानमंत्री ने 5 साल पहले राष्ट्र संघ में एक प्रतिवेदन किया था कि विश्व योग दिवस के रूप में जून 21 को पालन किया जाए। सर कोई सवाल नहीं उठाया, कोई कम्युनल सवाल नहीं उठाया, सारा विश्व पटल पर आनंद में सार से सबने स्वीकार किया। लगभग 190 देश में इसको मान लिया। सर मान लिया नहीं, पालन भी करते हैं। 50 लगभग मुस्लिम देश भी है। सर आज बहुत सारे यूनिवर्सिटी में सारे विश्व में योग एक पाठ्यक्रम के रूप में आया। सर भारत का आध्यात्मिक नेतृत्व को संपूर्ण विश्व स्वीकार कर लिया। जो विवेकानंद ने प्रोफेसराइज किया था और एक नरेंद्र ने इसका प्रोफेसराइज किया था और एक नरेंद्र के समय में ये फलवती हुआ। सर इसका गर्व आपको नहीं होता है? सर हम क्या इतना खिन्न हो गए कि हमारा देश का गर्व से भी हम शामिल नहीं हो पाएंगे? कितना पीड़ादायक जीवन। सर इसको सर आओ सर इकट्ठे होकर के देश का गर्व को मनाएंगे। साथ ही साथ मान्य सदस्य प्लीज, सर मान्य सदस्य सर नवीकरण, मान्य सदस्य मैं कहना चाहता हूं, मान्य सदस्य प्रधानमंत्री मान्य सदस्य एक ज्वलंत मान्य सदस्य मान्य सदस्य प्लीज, मान्य सदस्य प्लीज ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जाए। भारत मान्य सदस्य बहुत मान्य सदस्य, लेकिन साथ ही साथ भारत बाकी देशों को भी मदद कर सके और नवीकरणीय आपको आपकी बात कहने का मौका मिलेगा। बन सके। इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया। Countries have signed ISF framework agreement. India showed global statesmanship in climate change. मान्य सदस्य world is looking up to India's leadership. आज लाखों करोड़ मूल भारतीय नागरिक जो विश्व में किधर भी काम करते हैं, वो अगर अपना पासपोर्ट दिखाते हैं तो उन्हें बड़ी इज्जत मिलती है। क्यों जानते हैं? सर भारत के रहने वाले मूल भारतीय निवासी आज विश्व में जहां भी हो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। मोदी जी की सरकार ने किसी भी भारतीय के ऊपर जब भी किसी भी तरह की आंच आई तो उनको संरक्षण दिया और उसकी चिंता की। ऑपरेशन राहत के तहत यमन में 6,710 लोगों को निकाला गया। 4,748 भारतीय और 1962 विदेशी नागरिकों को शामिल थे। सर मैं पूछना चाहता हूँ, मान्य सदस्य आपको भी अभिव्यक्ति अपनी बात कहने की। मान्य सदस्य आपने क्या किया? आपने बोल दिया हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुवैत से उद्धार करना आपका दायित्व। मान्य सदस्य सब नियम प्रक्रिया से चला। सर उनके मंत्रियों ने अधिकारियों ने हाथ उठा दिया कि उसकी मुसीबत हमारी नहीं है कुवैत का। हो सकता है कि उन लोगों ने हमारी नागरिकता छोड़ दी और भारत में नहीं बल्कि सिर्फ कुवैत में ही काम करने हैं। सर लेकिन वो हमारे भारत के भाई बहन थे और उनका मूल हम सबके बीच में से ही निकले। पर ऐसा एक मौका नहीं आया हमारे 5 साल के शासन में जब किसी देश की किसी एक व्यक्ति के ऊपर भी हाँ चाहिए तो हमारी सरकार 24 घंटे एक करके पीछे नहीं छोड़े। सर अब गवर्नमेंट इज endeavored to use in an era of harmonious and collaborative center-state relationship. In tune with the government's idea of cooperative federalism, the 14th Finance Commission came out with the novel scheme of devolution of funds between the center and the state. It is a firm belief of this government that the center and state are all partners in the task of nation building. We are not competitors but equal stakeholders in the progress story of our nation. However, there are still some political leaders who believe ideological difference
are a nasty ground for non-cooperation, even at the cost of great loss to the day-to-day life of the common citizen. I can't understand why our brothers and sisters in West Bengal should suffer due to political stubbornness of their leaders is not implementing central programs like Ayushman Bharat and others. Still, we look for all. We will work 24/7 in service of all sections. Our goal is to serve our people and make India a great nation. Sir, our leader. माननीय सदस्य सर, आपको बहुत हैरान होता है। ओखा ने तो राम नहीं, नाम माननीय निषिद्ध हो सदस्य, गया, प्लीज। भारत माता की जय निषिद्ध हो गया। प्लीज माननीय सदस्य। স্যার কি অপরাধ করেছিলেন? ওখানে রাম নামকে কেন নিষিদ্ধ করে দিলেন? এত অসহিষ্ণুতা কেন? ভারত মাতা কি জয়কে কেন নিষিদ্ধ করে দিলেন? প্রতিদিন গণতন্ত্র माननीय सदस्य দাদা একটু বসে যান। माननीय सदस्य प्लीज স্যার प्लीज माननीय सदस्य आतंकवाद करे, प्लीज माननीय सदस्य देख लीजिए। प्लीज माननीय सदस्य प्लीज माननीय सदस्य प्लीज माननीय सदस्य শিয়াল হয়ে গেছে। प्लीज আর বলুন দিদি কোথায় যাবে? ये लोग তার প্রতিদিন रिपोर्ट मिल जाएगा माननीय सदस्य हजारों संख्या में माननीय सदस्य দায়িত্ব নিতে হবে। माननीय স্যার সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে। আপনার স্থানটা বারবার বদলে যাচ্ছে, যেহেতু যাত্রা পার্টির স্টেজে যখন আজকে কালকে রোল বদলে যাচ্ছে, কবি রানা প্রতাপ, কবি শিবাজি, তখন আপনার রোলটা বদলে যাচ্ছে। कभी को खिलाफ बोलते हैं, कभी सपोर्ट करते हैं वोट के लिए। স্যার আমি বলতে চাই আপনার রোলটাকে পহলে স্থির করে দিন। স্যার আমি একটা গপ আমাকে মালুম আছে, এক কাহিনী। আমি নিরপেক্ষ মানুষ। একদিন माननीय सदस्य আপনারা নিরপেক্ষ মানুষ বলছে। आप आसन की तरफ बोले माननीय सदस्य একটা নিরপেক্ষ आप आसन की तरफ बोले একটা নিরপেক্ষ মানুষ माननीय सदस्य प्लीज মাসওয়ারি प्लीज माननीय सदस्य आप आसन से बोलिए একটা ট্রেনে বলছেন যে माननीय सदस्य प्लीज একটা ডাকাতি হচ্ছেন, পকেট কাটা যাচ্ছে, একটা বলছেন কি আমি নিরপেক্ষ মানুষ, আমি কিছুতেই প্রতিকার করব না, কিছুতেই বলবো না, আমি দেখে থাকবো, আমি নিরপেক্ষ মানুষ। তখনই একটা পকেট কাটতে উনি বললেন আমি তো নিরপেক্ষ মানুষ, তোমার অন্যায়ের কোনোদিন প্রতিকার কর না, ডাকাতকে পুরো স্কোপ দিয়া তুমি আমার পকেট কেন কাটছো? তাহলে চলো তোমার পকেট কেটে নেবো। ঠিক আছে, পকেট নিয়ে যাও, মাসওয়ারি টিকিট করবো, আর পয়সা নিবো না, টিফিনে খাদ্য নিয়ে আসবো। তাই আসিল, লেকিন একদিন তার খাদ্য ছড়ালো আর তার আঁখি দুটা খুলে নিল। উনি চোখ দুটা কেন নিয়ে যাচ্ছে আমি দেখবো কি পরে রাইটার্স বিল্ডিং এ কাজ করি আমি সেক্রেটারি। উনি বললেন দেখো ভাই তুমি কাজ করো না করো তোমার চোখ দিয়ে নিয়ে যাবো। ঠিক আছে, হ্যান্ডিক্যাপ কোটায় চাকরি মিলে যাবে, থেকে রাখবে। তারপরে উনি কে করলেন, উনকা কিডনি কাটতে আসলেন আর একদিন। আরে তুমি নিরপেক্ষ, অন্যায়ের কোনোদিন প্রতিকার করি না। ভীষ্ম পিতামহ বললেন তোমাকে কিডনি দুটো দিতে হবে, এটা জ্যাদা দাম মিলবে। তাই जिन लोगों ने अन्याय प्रतिबाद करছে না, একে सहन করছে, তাদের অবশ্য হবে। सर और देखो सर, ऐसी नेतृत्व वाली सरकार हमने दी, अब हम 5 साल और परिश्रम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी के नेतृत्व में हम एक साफ, ईमानदार, निर्णायक, निडर और गरीबों को समर्पित, संवेदनशील, सुदृढ़, सक्षम सरकार, विकासशील, कर्मठ सरकार हम देंगे। आप इसमें सहायता करिए, अगर नहीं करेंगे तो जनता क्या करेगी आपको भली भांति मालूम है। मैं फिर से आपको कहता हूँ, ये वैदिक ऋषियों से लेकर ऋषि दयानंद तक, भगवान बुद्ध से लेकर, मैं नहीं पढ़ता हूँ, वैदिक ऋषियों से लेकर ऋषि दयानंद तक, भगवान बुद्ध से लेकर नागसेन तक, श्री चैतन्य देव से लेकर चंद्रधर तक, महाराणा प्रताप से लेकर प्रतापादित्य तक, छत्रपति शिवाजी से लेकर छत्रसाल तक, समर्थ स्वामी रामदास से लेकर रामकृष्ण विवेकानंद तक, श्री अश्वघोष अश्वपति से लेकर श्री अरविंद तक, हमारा समस्त ऋषि मुनि, दार्शनिक, योद्धा, राष्ट्र नायक, तत्ववेत्ता सब भारत क्या है। और इस भारत की कण-कण भूमि यज्ञ भूमि है, और इस भारत की कण-कण भूमि यज्ञ भूमि है। हमारा भाषा अलग हो सकती है लेकिन भाव एक, रचना अलग हो सकती है लेकिन भाषा एक, हमारा मार्ग भिन्न हो सकता है लेकिन लक्ष्य एक, साधन भिन्न हो सकता है लेकिन साध्य एक, हमारा रीति भिन्न हो सकता है, संस्कृति एक, और ये भारतीय संस्कृति का जय जयकार होने वाला है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। जो इनको विरोध करेगा वो हिमालय से अपना माथा को ठोकर करके जैसा करेगा वैसे ही होगा। और
मैं भी ये कहता हूं, आपको आश्वस्त करता हूं, इस मार्ग में हम चलेंगे, आपके साथ भी प्यार रखेंगे, लेकिन जो भारत माता का विरोध करेगा, अगर कोई दुष्ट ग्रह शनि ग्रह आ जाएगा हमारा मार्ग में, प्रयत्न की सारी कृपा ने उनको नष्ट निर्मूल हम कर देंगे और ये बर्बाद हो जाएगा। भारत माता की जय जयकार होगा। सर, मैं फिर से माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करता हूं। देश के मंगल की कामना के साथ, मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास के साथ और जनता का सहयोग के साथ मैं अपना वाणी को विराम देने से पहले हमारे मित्रों को कहता हूं, विनम्रता पूर्वक इस देश की धरोहर को समझो, हमारा गौरवपूर्ण सांस्कृतिक उत्तराधिकार को समझो। हम सब कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीजेडी हो या कोई भी पार्टी का हो, टीएमसी हो, हम सब भारत माता की संतान, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, भारत माता की संतान। और भारत माता आज हमें प्रतीक्षा करता है। हम एक गलती किया था, इसलिए देश का विभाजन हुआ, फिर दोबारा गलती नहीं करेंगे। इस बार जनता ये देश को बर्बाद करने के लिए कभी अनुमति नहीं देगी, कभी हमें बर्दाश्त नहीं करेगा और टुकड़ों टुकड़ों गैंग को तो देशवासी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इस देश के पुरुष सिंह नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा देश है, भारत माता है, भगवान की करुणा है। आप सब हाथ मिलकर के देश को आगे बढ़ाएंगे।